Hello and welcome to your online class. Good morning, students. How are you all? And my dear fellow friends who are watching the video, welcome to all of you. Okay, so the interesting thing we are going to learn today is about prefix and suffixes. Prefixes and suffixes. Okay, look at from the word. Prefixes is made with two words, pre and fix. Pre means before and suff here means after. So a prefix is used at the beginning of the words to modify them, change them, or make a new word. And a suffix is used at the end of a word to modify it, change its meaning, or make new words. Now let's look at the first one. For example, number 1, we have cycle. We have the word cycle. So we will add a prefix by to this. This becomes bicycle, okay? Which you always write, your bicycle. Then bilingual. Binoculars, supermarket, supernatural, superhuman, disobey, disagree, disrespect, paragraph, paraspelling, paragliding, submarine, sub-zero, subtract, automobile, automatic, autobiography. So if you observe, all the words are placed at the beginning of the word, okay? Now in suffix we have a word wilder and then we add ness. So wilderness, happiness, greatness. Then you see help, helpless, flight, flightless, use, useless. Wood, wooden, silk, silken, gold, golden. Teacher, plumber, author. So suffix, whether it's a small word or a longer word, it is used at the end of a word that already exists and it changes the meaning. Let's take for example help. Help means when you assist somebody. Okay, madad karna. Now we have added helpless. So it becomes like an opposite to it. Okay, like an antonym. I wanted to help, I became helpless. That is something like lachar. Then I have another word, look at it, use. Use होता है किसी चीज़ का फ़ायदा है किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. And then we have put a suffix less. So it becomes useless. मतलब बेकार. So इस तरह से हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगाते हैं वर्ड्स के स्टार्टिंग में एंड इनके एंडिंग में. नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, ग्रीन हाउस इफेक्ट. नाउ हैव यू एवर सीन अ ग्रीन हाउस? ओके, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास. जो ये घर होते हैं ग्रीन हाउस, ये पूरा ऊपर से कांच का बना हुआ होता है, ठीक है. जो जैसे कि छत होती है इसकी कांच की होती है. और ये क्यों बनाया जाता है? इसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं, ख़ासतौर से सर्दियों में. जो दीवारें हैं ना वो कांच की होती हैं एंड बहुत ईज़िली सूरज की जो किरणें हैं वो उसमें डेफिनेटली उससे चली जाती हैं पौधों पे. सो पौधों में डायरेक्टली सन रेज नहीं जाती हैं, उस कांच के थ्रू जाती हैं. देन द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ मिक्सचर. जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमें पता है उसमें गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, ठीक है. साथ में ही पानी भी होता है, पानी वाटर स्टीम होती है एंड डस्ट होता है, ठीक है. अब देखो बादल होते हैं, बादल जो है वाटर होल्ड करता है. जो बारिशें होती हैं बादलों में से पानी निकलता है, इज़न्ट इट, जो बारिशें गिरती हैं. सो एंड उसमें वहाँ पर आप देखें कभी जो धुआं होता है ना, किचन में आप कुछ बना रहे हैं, खाना बनाते हैं तो भाप निकलती है. तो भाप भी एक गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में होती है. अब जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उस कांच के दीवारों पे जिसमें हमने पौधे उगा रखे हैं, ठीक है, वो उतनी ही लेती है जितना पौधों को ज़रूरत है. एक्सेस हीट नहीं होती है पौधों पर. एंड देन कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, ठीक है. ये भी प्रिवेंट करती हैं, ये रोकती है कि जो गर्माहट आती है सूरज से इतनी ज़्यादा ना हो कि पौधे ख़राब हो जाए. And then we have the natural greenhouse effect. The earth's surface has an average temperature of 59 degrees Fahrenheit. Without it, the average temperature would fall to 0 degree Fahrenheit and life on earth would not be possible. अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका मेन काम ये होता है कि जो सूरज की किरणों से गर्माहट आती है वो उसको पकड़ के रखते हैं, उसे सारे को स्टोर कर लेते हैं ताकि जो हमारी ज़मीन का लेयर है वो गर्म रहे ताकि हम जी सकें. हमें गर्माहट की ज़रूरत होती है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए. अगर जो किरणें आती हैं सूरज की उसकी गर्माहट हम ज़मीन पे ना रोक पाए
तो ज़मीन पे से सारी गर्माहट ख़त्म होकर और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब बर्फ़ का जो होता है वो बन जाएगा। एंड फिर जीना मुश्किल होगा जब हर चीज़ में सिर्फ ठंड रहेगी, बर्फ़ रहेगा बिना सूरज की गर्माहट के। सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का फ़ायदा यही होता है कि ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, ये ज़मीन पर पकड़ ली जाती हैं, कैद कर ली जाएंगी। एक दिस इज़ इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, व्हाट वी डू इज़ हम प्रिवेंट करते हैं कि जो हीट है ये वापस चली ना जाए ज़मीन पे से, ये यहीं इसी ज़मीन के इस लेयर पे रहे ताकि हम भी ऑल लिविंग थिंग्स अच्छे से सर्वाइव कर सकें। अब देखें, ये एक डायग्राम है जिसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट समझाया गया है, ठीक है। और डेफिनेशन भी देखिए, द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द वे इन विच गैसेज इन अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ग्लास इन अ ग्रीन हाउस, लेटिंग सनलाइट इन बट नॉट लेटिंग हीट आउट। सो ये जो कांच का घर है जिसमें हमने पौधे उगाए हैं, इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो ग्रीन हाउस होता है, ठीक है, वो एक तरीका है जिससे कि जो प्लैनेट का, जो हमारी पृथ्वी है, उस इस एटमॉस्फेयर पे जो गैसेस हैं, ठीक है, ये जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उन्हें पकड़ लेती हैं, ठीक है, अंदर आने देती हैं, लेकिन उस गर्माहट को वापस नहीं जाने देते ज़मीन पे से। दैट इज़ द मेन लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक हियर, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली क्या होता है, मतलब कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके अच्छा रखें। सो सबसे पहला वाला है, द एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रिवेंट क्रूअल्टी टूवर्ड्स एनिमल। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, PETA, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि जो जानवर होते हैं सिर्फ शिकार के लिए नहीं होते, मारने के लिए नहीं होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये दिखाया जाता है, लोग बाहर निकलकर सड़कों पे नारे भी लगाते हैं कि जानवरों पे जुल्म मत करो, जानवरों को प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी बड़े लोग जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अमीर लोग होते हैं, इसको स्पॉन्सर भी करते हैं कि कुत्ते हैं जैसे, उन्हें डंडे से मत मारा करो, उन पे गाड़ी मत मारा करो, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक और है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीशी ख़त्म होती जा रही है ज़मीन पे से, कुछ शिकार से मर जाते हैं, कुछ देखभाल अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनकी स्पीशी ख़त्म होती जा रही है। तो जो सेकंड वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इनका यही काम है कि ध्यान रखें, प्रोटेक्ट करें। तीसरा है पीपल फॉर एनिमल्स। अब ये इंडिया का लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। मानेका गांधी ने ये ऑर्गेनाइजेशन 1992 में स्टार्ट किया था और इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट टाइगर। नाम से ही आपको पता चल गया कि टाइगर के बारे में है, और ये एक टाइगर को ज़िंदा रखने की, उनकी स्पीशीज़ को, उन्हें बचाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1973 में, जो सरकार ने स्टार्ट किया था जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और इस प्रोजेक्ट में बहुत टाइगर्स थे जिनको बचाकर अच्छे से पाला गया था, ठीक है। देन नंबर 5 वी हैव साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। अब ये जो मूवमेंट है, इसमें हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो बहुत अच्छी हैं फसल के लिए, लेकिन उनको यूज़ करते हैं लड़ाई झगड़ों के लिए, ठीक है। जैसे कि उड़ीसा में जो है एक गांव है, वहाँ पर मिसाइल्स बनाए जाते हैं। मिसाइल्स के लिए एक बहुत खुली स्पेस होनी चाहिए जहाँ उनका पूरा सेटअप होता है, इंजन होता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि जब एक मिसाइल लॉन्च होती है तो कितनी हीट होती है, कितनी आग होती है उसमें, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है कि लोग जो अच्छी ज़मीन है फसल के लिए उसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ये इस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं कि जो ज़मीनें अच्छी हैं फसल के लिए, उन पे हमें फसल बोने दो ताकि हमें खाने को मिले। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नाम से ही देखें, नर्मदा रिवर है, ठीक है। सो नर्मदा को बचाने का, देखें, ये जो था ये उस बात के ख़िलाफ़ था कि जो डैम बनाया गया था, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, उसको रोकने का था। देन नेक्स्ट वी हैव दिस वाज अ सोशल मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1973 टू सेव द प्रोजेक्ट फ्रॉम बीइंग फ्लडेड ड्यू टू अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो होता है जब पानी से हम बिजली बनाते हैं, ठीक है। ये था बालियापाल मूवमेंट। अब देखें, ये कुछ
लोग हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत काम किया था। उनमें से पहले हैं सुंदरलाल बहुगुणा, फिर है महेश चंद मेहता, फिर है मेधा पाटेकर, फिर है चेन्नई प्रसाद भट्ट एंड बाबा आमटे। ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत एहतियात से और बहुत आंदोलन निकाले थे कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, साफ़ रहे, प्रोटेक्ट करें।